مہنگے تاہم مارکیٹ میں درجہ ذیل کا دکان پھل 300 روپے فی کلو تک فروخت کیا جا رہا ہے۔ انار پنڈاری 25 روپے مہنگا کر کے 770 روپے فی کلو مقرر کیا گیا۔ مارکیٹ میں انار پنڈاری 1100 روپے فی کلو تک فروخت ہو رہا ہے۔ تمام سبزیاں اور پھلیاں سرکاری مقاموں کے برعکس مہنگے داموں شہریوں کو فروخت کیا جا رہا ہے۔ جی ٹھیک ہے عبدالقادر، بہت شکریہ آپ کا۔ سردی شروع ہوتے ہی ڈرائی فروٹس کی دکانوں پر رونق پڑنے لگی۔ خشک میوہ جات کی قیمتیں پھر عوام کی پہنچ سے کوسوں دور ہیں۔ گزشتہ سال کی نسبت امسال قیمتوں میں 100% اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ دکانداروں نے بھی مہنگائی کے باعث گاہک نہ ہونے کا شکوہ کر دیا۔ موسم میں ڈرائی فروٹ جسم کو حرارت مہیا کرنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں، مگر ہمارے ہاں المیہ یہ ہے کہ کوئی بھی خشک میوہ غریب کی پہنچ میں نہیں رہا۔ بازار میں بادام، پستہ، کاجو، انجیر، اخروٹ سونے کے بھاؤ فروخت ہو رہے ہیں۔ گزشتہ سال بادام کی گری 3200 روپے فی کلو تک فروخت ہوئی، جو آج 3600 روپے تک جا پہنچی ہے۔ کاجو 3000 روپے کلو سے بڑھ کر 4400 روپے کلو تک فروخت ہو رہے ہیں۔ پستہ اور انجیر کی قیمتوں میں بھی نمایاں اضافہ ہوا۔ گزشتہ سال پستہ 3000 روپے کلو تک فروخت ہوا، اب 4000 روپے تک مل رہا ہے۔ انجیر 3000 روپے سے 4000 روپے فی کلو تک جا پہنچی ہے۔ اخروٹ کی قیمت 1200 سے بڑھ کر 1600 روپے کلو ہو چکی ہے۔ خریدار نہیں، لوگ آتے ہیں، ریٹ سنتے ہیں اور واپس چلے جاتے ہیں۔ اصل میں کوئی بھی چیز جب مہنگی ہوتی ہے نا تو اس کی فروخت پہ اثر پڑتا ہے، کیونکہ عام آدمی کی پہنچ سے وہ سودا دور ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ڈرائی فروٹ کا بھی حساب ہے کہ عام آدمی کی پہنچ سے آہستہ آہستہ دور ہوتا جا رہا ہے۔ بات یہ ہے کہ حالات ملک کے دیکھے جائیں تو کاروبار میں فرق ہے، خریدنے والے بہت کم ہیں تو فصلیں بہت زیادہ بڑی ہوئی ہیں۔ خریداروں کا کہنا ہے غریب آدمی گھر کے خرچے پورے کر لے وہی بہت ہے، ڈرائی فروٹ صرف امیروں کے لیے رہ گیا ہے۔ مہنگائی اتنی زیادہ ہے، کھانا تو دور کی بات ہے، دیکھ بھی نہیں سکتا۔ تو اس سال کافی چیزیں پہلے سے کافی سستی ہوئی ہیں۔ چنگوزے کا ریٹ بہت کم ہوا ہے، پچھلے سال 14000 روپے ریٹ تھا، اس سال 10000 ہے، 7-8 والا بھی ہے، کوالٹی وائز فرق ہے۔ غریب آدمی تو مونگ پھلی بھی نہیں کھا سکتا، وہ بھی 1100 روپے کلو ہے۔ قیمتوں میں اضافے نے جہاں شہریوں کی قوت خرید کم کر دی، وہیں دکاندار بھی مایوس ہیں۔ سردی ڈرائی فروٹس کے بغیر ادھوری ضرور ہے، لیکن جیب اجازت نہیں دیتی۔ سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان حج معاہدہ۔ سعودی نائب وزیر حج اور پاکستانی سیکرٹری مذہبی امور نے جدہ میں معاہدے پر دستخط کر دیے۔ معاہدے کے تحت حج 2026 کے انتظامات کو مزید بہتر بنایا جائے گا۔ محمد علی کی رپورٹ۔ سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان حج 2026 کے انتظامات پر معاہدہ طے پا گیا۔ سعودی نائب وزیر حج ڈاکٹر عبدالفتاح بن سلیمان اور وفاقی سیکرٹری مذہبی امور ڈاکٹر عطاء الرحمان نے جدہ میں حج معاہدے پر دستخط کیے۔ تقریب میں سعودی سفیر نواف بن سعید المالکی، ڈی جی حج جدہ عبدالوہاب کی بھی شرکت۔ وفاقی سیکرٹری مذہبی امور ڈاکٹر سید عطاء الرحمان نے تقریب میں کہا کہ اس سال بھی پاکستانی حجاج کرام کو اعلیٰ معیار کی سہولیات فراہم کی جائیں گی۔ وزارت مذہبی امور حج انتظامات کو بروقت اور مؤثر طریقے سے مکمل کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ حج معاہدے پر دستخط کرنے کی تقریب میں ڈائریکٹر حج مکہ مکرمہ عزیز اللہ خان، ڈائریکٹر حج مدینہ منورہ ضیاء الرحمان، ڈپٹی سیکرٹری حج پالیسی چودھری کاشف حسین بھی موجود تھے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ محمد علی، لاہور نیوز۔ لاہور سمیت پنجاب بھر میں ڈینگی مچھروں کی افزائش۔ صوبے بھر میں 24 گھنٹوں کے دوران ڈینگی کے 60 کنفرم مریض رپورٹ۔ لاہور شہر میں ڈینگی کے 4 نئے مریض سامنے آ گئے۔ شہر میں ڈینگی کے کنفرم مریضوں کی تعداد 626 تک جا پہنچی۔ محمد بلال کی رپورٹ دیکھیے۔ نہ پایا جا سکا۔ پنجاب بھر میں گزشتہ 24 گھنٹوں میں 60 کنفرم مریض رپورٹ۔ صرف لاہور میں ڈینگی کے 4 مریض سامنے آئے۔ پنجاب میں اب تک ڈینگی کے کنفرم مریضوں کی تعداد 3470، لاہور 626 تک پہنچ گئی۔ ڈینگی کے بیشتر مریض نجی ہاسپٹلز اور کلینکس پر رپورٹ ہو رہے ہیں۔ وزیر صحت خواجہ عمران نذیر کا کہنا ہے کہ ڈینگی سرویلنس کو تیز کر کے لاروا کو ہنگامی بنیادوں پر تلف کیا جا رہا ہے۔ ڈینگی سے بچاؤ کے لیے شہری ایس او پیز پر عمل درآمد کو یقینی بنائیں۔ گھروں میں خطرناک حد تک اضافہ ہونے کا خدشہ ہے۔ راولپنڈی اور اسلام آباد میں ایف آئی اے کی بڑی کارروائی۔ غیر قانونی کال سینٹرز کے خلاف بڑا مقدمہ درج کر لیا۔ غیر قانونی کال سینٹرز میں چینی شہریوں کی شمولیت اور پاکستانی افسران کی ملی بھگت کا انکشاف ہوا ہے۔ ایف آئی آر ایف آئی اے اینٹی کرپشن سرکل اسلام آباد نے درج کی ہے۔
गैर कानूनी कॉल सेंटर्स के खिलाफ FIA की बड़ी कार्रवाई। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में गैर कानूनी कॉल सेंटर्स के खिलाफ बड़ा मुकदमा दर्ज कर लिया। गैर कानूनी कॉल सेंटर्स में चीनी शहरियों की शमूलियत और पाकिस्तानी अफसरान की मिली भगत का इंकशाफ। FIA इंक्वायरी 326/2025 में 15 कॉल सेंटर्स की गैर कानूनी सरगर्मियों का इंकशाफ। कॉल सेंटर्स रावलपिंडी में जाली कंपनियों के नाम पर काम कर रहे थे। FIA के मुताबिक चीनी नेशनल कैल्विन कॉल सेंटर्स का फ्रंट मैन था। कॉल सेंटर्स आवाम से फ्रॉड के जरिए भारी रकूम बटोरने में मुलव्विस थे। NCCIA के अफसरान ने माहाना भत्ता वसूली का मुनज़्ज़म नेटवर्क कायम कर रखा था। FIR के मुताबिक 15 कॉल सेंटर से माहाना 15 मिलियन रुपए रिश्वत वसूल की जाती रही। कुल 8 माह के दौरान 120 मिलियन रुपए गैर कानूनी तौर पर वसूल किए गए। डिप्टी डायरेक्टर शहजाद हैदर अब्बास और मोहम्मद बिलाल पर रिश्वत लेने के संगीन इल्जामात हैं। FIA के मुताबिक कॉल सेंटर से कॉर्पोरेशन फीस के नाम पर भारी रकम वसूल की गई। सब इंस्पेक्टर मोहम्मद बिलाल और शहजाद हैदर ने फ्रंट मैन हसन अमीर के जरिए रकम वसूल की। हसन अमीर चीनी शहरियों के कॉल सेंटर्स का फ्रंट मैन निकला। NCCIA के अफसरान ने जाली कार्रवाइयों के जरिए माहाना भत्ता वसूली जारी रखी। FIR में इंकशाफ हुआ है कि चीनी कैल्विन ने पाकिस्तानी अफसरान को बाकायदा कमीशन दिया। रिश्वत की रकम अफसरान के जाती अकाउंट्स में और नगद सूरत में दी गई। FIA के मुताबिक नई पोस्टिंग्स के बाद भी भत्ताखोरी का सिलसिला जारी रहा। मई 2025 में नया इंतजाम आने के बाद भी NCCIA रावलपिंडी में रिश्वत का नेटवर्क फाल रहा। असिस्टेंट डायरेक्टर नदीम अहमद खान और आमिर नजीर पर भारी रिश्वत के इल्जामात। सब इंस्पेक्टर सारिम अली ने मुबैना तौर पर मुकदमात के इवज 21 मिलियन रुपए रिश्वत ली। FIR FIA एंटी करप्शन सर्कल इस्लामाबाद ने दर्ज की है। वक्त हुआ एक ब्रेक का, लेकिन उससे पहले शामिल करेंगे लाहौर न्यूज़ फटाफट। वेलकम बैक। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं। आपको बताएं कि दाता दरबार के इतराफ LD और टीपा ने रीमॉडलिंग का 3D मॉडल जारी कर दिया। मंसूबा मुकम्मल होने पर इलाका लाहौर का नया लैंडमार्क बनकर उभरेगा। ज़ैनुल आबदीन की रिपोर्ट। डेवलपमेंट अथॉरिटी और टीपा ने दाता दरबार और भाटी गेट के इर्द गिर्द के इलाके की मुकम्मल रीमॉडलिंग और तोसी का मंसूबा फाइनल कर लिया। 3D वीडियो के इजरा के साथ ही शहर के सबसे ज्यादा रश वाले एरिया को जदीद, मुनज़्ज़म और साफ सुथरा बनाने की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। मंसूबे के तहत दाता दरबार के सामने से गंदगी, तजावुज़ात और बेतरतीबी का मुकम्मल खात्मा किया जाएगा। लोअर माल, भाटी चौक और मोहनी रोड की सड़कों को कुशादा बनाया जाएगा। ज़ायरीन के लिए वॉकवेज, पेडेस्ट्रियन अंडरपासेज, सिटिंग एरिया, सामने से तमाम रुकावटें हटा कर एक वसी ग्रीन एरिया और मुनज़्ज़म पार्किंग एरिया कायम किया जाएगा। भाटी चौक और अतराफ में मौजूद पुरानी और खस्ताहाल इमारतों का फैसाड बेहतर करके इलाके की तारीखी शनाख्त को बहाल किया जाएगा। मंसूबा मुकम्मल होने पर योमिया 2.5 लाख से जायद गाड़ियां गुजर सकेंगी। रीमॉडलिंग तरक्याती मंसूबा नहीं, लाहौर की ताज़ी नैनो है। दाता दरबार, भाटी चौक और लोअर माल का रीमॉडलिंग प्रोजेक्ट मुकम्मल होने पर लाहौर के तारीखी हुस्न और जदीद शहरी मंसूबाबंदी का हसीन इम्तिजाज पेश करेगा। मास ट्रांजिट सिस्टम में सफ़र मज़ीद महंगा। पंजाब हुकूमत ने ट्रैवलर कैश कार्ड की कीमत में 100% इजाफा कर दिया। 130 रुपये वाला कार्ड अब 260 रुपये में दस्तयाब होगा। रोज़ाना सफ़र करने वाले लाखों मुसाफिरों के लिए माली मुश्किलात में इजाफा हो गया। वालों के लिए नया माली बोझ डाल दिया। ट्रैवलर कैश कार्ड की कीमत में 100% इजाफा। 130 वाला कार्ड अब 260 रुपये में खरीदना होगा। कार्ड की असल कीमत 130 रुपये बरकरार। हुकूमत ने 130 रुपये के डिलीवरी चार्जेस डाल दिए। पहले दावा किया गया था कि टी कैश कार्ड आवाम की सहूलत के लिए सिर्फ 130 रुपए में फ्रहम किया जाएगा। नई पॉलिसी के तहत ट्रैवलर कैश कार्ड अब घरों में डिलीवर किए जा रहे हैं। मेट्रो बस, ऑरेंज ट्रेन और स्पीडो बस के रोजाना के लाखों मुसाफिर नई पॉलिसी से मुतासिर। कार्ड की कीमत में दोहरे इजाफे ने मुसाफिरों में शदीद गमो गुस्से की लहर पैदा कर दी। GM ऑपरेशंस मास ट्रांजिट अथॉरिटी अजीज शाह के मुताबिक मुसाफिरों की सहूलत के पेश नजर घर बैठे कार्ड हासिल करने की सहूलत मुतारिफ करवाई गई, जिसके चार्जेस वसूल किए जा रहे हैं। कैमरा टीम के हमरा ज़ैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज़। दूसरी जानिब ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर अब लाइसेंस मुअत्तल, भारी जुर्माने होंगे। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से भिजवाई गई समरी पर सूबाई काबीना ने मंजूरी दे दी। देखते हैं ये रिपोर्ट। की खिलाफ वर्जी अब जरा ध्यान से, मुआफी तलाफी से काम नहीं चलेगा, भारी जुर्माने होंगे, लाइसेंस मुअत्तल होगा। सूबाई काबीना ने समरी की मंजूरी दे दी। समरी के मुताबिक 25 मुख्तलिफ खिलाफ वर्जियों पर कम से कम जुर्माना 2000 रुपए मुकर्रर कर दिया गया। कवानीन की खिलाफ वर्जी पर ज्यादा से ज्यादा जुर्माने 20,000 तक होंगे। हर खिलाफ वर्जी पर 2 से लेकर 4 पॉइंट्स की कटौती भी की जाएगी। सालाना 20 पॉइंट्स की खिलाफ वर्जियों पर लाइसेंस, 2 माह से 1 साल, रीडिंग पर जुर्माना 2000 से 20,000 रुपए वसूल किया जाएगा।
ओवर स्पीडिंग की खिलाफ वर्जी पर 4 पॉइंट्स की कटौती होगी। ट्रैफिक सिग्नल की खिलाफ वर्जी पर 2000 से 15,000 रुपए तक जुर्माना होगा। ट्रैफिक सिग्नल की खिलाफ वर्जी पर भी 4 पॉइंट्स की कटौती होगी। ओवरलोडिंग पर जुर्माना 2000 से 15,000 रुपए तक होगा। ओवरलोडिंग करने पर भी 4 पॉइंट्स की कटौती की जाएगी। वन वे की खिलाफ वर्जी पर जुर्माना 2000 से 15,000 रुपए तक होगा। समरी के मुताबिक वन वे की खिलाफ वर्जी पर भी 4 पॉइंट्स की कटौती होगी। रैश ड्राइविंग पर जुर्माना 3000 से 15,000 होगा। 4 पॉइंट्स की कटौती होगी। समरी के मुताबिक प्रेशर हॉर्न पर 2000 से 10,000 रुपए जुर्माना और 2 पॉइंट्स की कटौती की जाएगी। पंजाब हुकूमत का बड़ा फैसला, रोजगार रेगुलर करने वाला कानून 2018 खत्म कर दिया गया। पंजाब रेगुलराइजेशन ऑफ सर्विस एक्ट 2018 बाज़ाब्ता मंसूख कर दिया गया। देखते हैं ये रिपोर्ट। गवर्नर पंजाब ने आर्टिकल 128 के तहत नया ऑर्डिनेंस जारी कर दिया। ऑर्डिनेंस का इत्तिलाक फौरी तौर पर नाफिजुल अमल होगा। ऑर्डिनेंस जारी होने का मकसद रेगुलराइजेशन के पुराने निज़ाम का खात्मा है। हुकूमत मुख्तलिफ हालात को देख कर हंगामी कदम उठाने पर मजबूर हुई। अब सरकारी भर्तियाँ बेसिक पे स्केल के बजाय पे पैकेज पर माली बोझ में कमी, पेंशन और ग्रेजुएटी का बोझ खत्म करने की कोशिश है। सरकारी खजाने पर बर्दाश्त होने वाला बोझ कम करने का वाज़ेह ऐलान किया गया है। 2018 के एक्ट के तहत साबिका फैसले बरकरार रखे जाएंगे। पुराने एक्ट के तहत किए गए इकदामात कालादम नहीं होंगे। फाइनेंशियल बर्डन कम करना ऑर्डिनेंस की बुनियादी वजह करार दिया गया है। सरकारी मुलाजमीन के मुस्तकबिल का नया फ्रेमवर्क ज़ेरे गौर है। ऑर्डिनेंस का मकसद मुस्तकबिल की भर्तियों में नई पॉलिसी अपनाना। मुस्तकिल मुलाजमत के ख्वाब अब नई पॉलिसियों से मशरूत होंगे। साबिका रेगुलराइज्ड मुलाजमीन को फौरी असरात का सामना नहीं। ऑर्डिनेंस के जरिए सरकारी अखराजात का दबाव कम हो सकता है। महकमा खजाना पंजाब की माली कारकर्दगी पर सवाल। ऑडिट रिपोर्ट ने अरबों रुपए की अदम रिकवरी की बेज़ाब्ती का इंकशाफ कर दिया। सूबाई खजाने को भारी नुकसान का खदशा, जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की गई है। हमजा खुर्शीद की रिपोर्ट देखिए। पंजाब फाइनेंस डिपार्टमेंट के मालियाती मामलात एक बार फिर सवालों की जद में। ऑडिट रिपोर्ट 2024-25 के मुताबिक हुकूमत पंजाब अपने ही इदारों, कंपनियों और कमर्शियल बैंकों से 466 अरब रुपए रिकवरी करने में नाकाम रही। रेस्कोस ने बिजली ड्यूटी की मद में 82 अरब रुपए जमा नहीं कराए, जबकि 177 अरब रुपए इजाफी ट्रांसफर के बावजूद वापस न मिले। रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ है कि 44 अरब रुपए के सरकारी फंड्स मुख्तलिफ कमर्शियल बैंकों में मौजूद हैं, जबकि सरकारी इदारों और कंपनियों को दिए गए कर्जों में से 70 अरब रुपए से जायद रकम वापस न आ सकी। कादराबाद कोयला पावर प्लांट के लिए जारी 1 अरब रुपए से जायद रकम रिकवर नहीं की गई। रिपोर्ट में कहा गया है कि कमजोर मालियाती कंट्रोल के बायस सूबाई खजाना दबाव का शिकार है। ऑडिट रिपोर्ट में वाजे किया गया है कि 23 जनवरी की DAC मीटिंग में महकमे खजाना तसल्ली बख्श वजाहत न दे सका। ऑडिट हुकाम ने तमाम वाजिबात फौरी खजाने में जमा कराने और जिम्मेदारों के तयन और कार्रवाई की सिफारिश कर दी। हमजा खुर्शीद, लाहौर न्यूज़। लेस्को इंतजामिया का बड़ा फैसला, मुलाजमीन के डिसिप्लिनरी केसेस का निज़ाम तब्दील। ग्रेड 1 से 16 तक के मुलाजमीन पर अब END रूल्स 1978 लागू नहीं होंगे। फाहद अमीन की रिपोर्ट। लेस्को ने END रूल्स के बजाय स्टैंडिंग ऑर्डर्स 1968 नाफिज कर दिए। डायरेक्टर HR लेस्को ने मरासला जारी कर दिया। रूल्स में तब्दीली लेस्को के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मंजूरी के बाद की गई। ज़राए के मुताबिक लेस्को में रूल्स में तब्दीली 2011 से इल्तवा का शिकार थी। END रूल्स बिजली की तकसीम कार कंपनियों के मुलाजमीन पर लागू नहीं होती। जिन मुलाजमीन को END रूल्स के तहत सजाएं मिली वो इसी बुनियाद पर अदालतों से रिलीफ लेने में कामयाब हुए। आइंदा तमाम शोकाज नोटिस और कार्रवाइयाँ स्टैंडिंग ऑर्डर्स के तहत होंगी। ज़राए का कहना है कि स्टैंडिंग ऑर्डर्स के तहत मुलाजमत से निकालने का इख्तियार सिर्फ अपॉइंटिंग अथॉरिटी के पास होगा। लेस्को इंतजामिया ने मुताल्लिका दफातर को नए तरीक़ेकार पर अमल दरामद की हिदायत जारी कर दी। लेस्को हुकाम के मुताबिक फैसले का मकसद महकमाना कार्रवाइयों में यकसानियत और शफाफियत लाना बताया गया है। स्टैंडिंग ऑर्डर्स 1968 के तहत शोकाज, इंक्वायरी और सजा के तरीक़ेकार में तब्दीली कर दी गई। मुलाजमीन के केसेस की समाअत अब नए ज़वाबित के मुताबिक की जाएगी। नया निज़ाम जल्द तमाम सर्कल्स में नाफिजुल अमल होगा। फैसला लेस्को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के इजलास में इत्तफाक राय से मंजूर किया गया। पंजाब फूड अथॉरिटी शहरियों तक सेहतमंद खुराक पहुंचाने के लिए मुतहरिक। शहर भर में मोबाइल फूड टेस्टिंग लैब्स का सिलसिला जारी। शहरियों को दूध में केमिकल्स और मिलावट की जांच मुफ्त फराहम की जा रही है। देखिए अब्दुर्रहमान की ये रिपोर्ट।
पंजाब अथॉरिटी की टीमें शहर के मुख्तलिफ इलाकों अड्डा प्लॉट, लक्ष्मी चौक और लिबर्टी में रोजाना की बुनियाद पर स्पॉट कायम कर रही हैं, जहां से ये मोबाइल लैब्स ज्यादा से ज्यादा 10 दिन और कम से कम हर 24 घंटे बाद नई जगह मुंतकिल होती हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा शहरियों को सहूलत पहुंचाई जा सके। फूड अथॉरिटी नुमाइंदों का कहना है कि शहरियों को न्यूट्रिशन और सेहतमंद खुराक से मुतालिक आगाही फराहम की जा रही है। काफ़ी ज़्यादा लोग मुख्तलिफ जगहों से आ रहे हैं यहाँ टेस्टिंग के लिए, और हम उनको टेस्टिंग करके देते हैं और उनको बताते हैं कि जो हमारे स्टैंडर्ड्स हैं उसके अकॉर्डिंगली ये दूध नहीं ठीक है, जिसके स्टैंडर्ड्स ख़राब होते हैं। न्यूट्रिशन के हवाले से उसमें प्रॉपर्ली हम लोग पेशेंट्स को गाइड करते हैं उनके अकॉर्डिंगली कि उनके बॉडी मास इंडेक्स के अकॉर्डिंग। हमारे पास यहाँ पर कुछ सहूलियात मौजूद होती हैं ऑन द स्पॉट, जहाँ पर हम उनकी हाइट वगैरह चेक कर लेते हैं। उसके साथ साथ हम उनका बॉडी मास इंडेक्स चेक करते हैं और बॉडी का फ़ैट एनालाइज करते हैं, और उसके अकॉर्डिंगली फिर हम उसको डाइट प्लान या डाइटरी गाइडलाइंस जो है वो हम उसको प्रोवाइड करते हैं। PFA की ये मुहिम अवामी सेहत के फरोग के लिए एक बड़ा कदम करार दी जा रही है। हुक्काम के मुताबिक इसका मकसद शहरियों को जहरीले और केमिकल मिले दूध से महफूज रखना है। कैमरामैन मोहम्मद बिलाल के साथ अब्दुल रहमान, लाहौर न्यूज़। महकमा हायर एजुकेशन पंजाब का कॉलेजेस को भी आउटसोर्स करने का फैसला, असातिज़ा तंजीमों की जानिब से फैसला मुस्तरद, शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। पंजाब प्रोफेसर एंड लेक्चरर्स एसोसिएशन के रहनुमाओं का कहना है कि फैसले को हर सूरत पर रोकेंगे। आतिफ परवेज़ की रिपोर्ट देखिए। पंजाब में 200 सरकारी कॉलेजेस को आउटसोर्स करने का फैसला। महकमा तालीम के मुताबिक आउटसोर्सिंग का मकसद इंतजामी कारकर्दगी में बेहतरी और तालीमी मायार को बेहतर बनाना है। पंजाब प्रोफेसर एंड लेक्चरर्स एसोसिएशन ने इस फैसले की सख्त मुखालिफत की है। ओहदेदारान का कहना है कि आउटसोर्सिंग से सरकारी तालीम का सस्ता और काबिल रसाई निज़ाम तबाह हो जाएगा। ये पॉलिसी असातिज़ा और तलबा दोनों को मुतासिर करेगी। तालीम आम आदमी की पहुँच से दूर हो जाएगी। अपने टीचर्स के लिए भी खड़े हैं, स्टूडेंट्स के लिए भी खड़े हैं, और हम सबसे कॉन्शियस पर्थ हैं इस सोसाइटी की, तो हम कैसे जाने देंगे, कैसे हज़म करेंगे? हम तो ज़रूर खड़े होंगे, कन्फ्रंट करेंगे मिनिस्टर के इस फैसले को। किसी सूरत भी, किसी भी तरीके से हम इन कॉलेजेस को बिल्कुल आउटसोर्स नहीं होने देंगे, और हम हर तरह की तहरीक चलाएंगे। कॉलेजेस के टीचर्स भी मुश्किलात का शिकार हो सकते हैं, होंगे, उससे ज़्यादा वहाँ के स्टूडेंट्स मुश्किलात का शिकार होंगे। पेरेंट्स जो इर्द गिर्द के इलाके के उन स्टूडेंट्स के जो वालिदैन हैं वो मुश्किलात का शिकार होंगे, वो और ये इदारे मुकम्मल तौर पर तबाह हो जाएंगे। और आउटसोर्सिंग को यहीं पे नहीं रोक रही हुकूमत, इसी जगह पे नहीं रोक रही, आउटसोर्सिंग इससे आगे बढ़ रही है। असातिज़ा तंजीमों का कहना है कि अगर आउटसोर्सिंग का फैसला वापस न लिया गया तो एहतजाजी तहरीक चलाई जाएगी। कैमरामैन मोहम्मद बिलाल के साथ आतिफ परवेज, लाहौर न्यूज़। दूसरी तरफ आपको बताएं कि अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी ने रवा साल दाखिलों के नए रिकॉर्ड कायम कर दिए। गुज़िश्ता साल के निस्बत 30% ज़ायद दाखिले हुए हैं। तफसीलात के लिए ये रिपोर्ट देखिए। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में तालीमी साल 2025 के लिए दाखिलों में नुमाया इजाफा देखने में आया है। यूनिवर्सिटी इंतजामिया के मुताबिक रवा साल दाखिलों की तादाद में 30% इजाफा हुआ है। डायरेक्टर जनरल रीजनल सर्विसेज डॉक्टर तौकीर मलिक के मुताबिक यूनिवर्सिटी ने वक्त के तकाजों के मुताबिक मज़ामीन में तब्दीलियां मुतारिफ कराई हैं, ताकि तलबा को जदीद तालीम से हम आहंग किया जा सके। यूनिवर्सिटी में डिजिटलाइजेशन का अमल मुकम्मल होने के बाद तमाम निज़ाम ऑनलाइन कर दिया। यकीनन ये हमारे लिए काबिल फ़ख्र बात है कि प्रोफेसर डॉक्टर नासिर महमूद हमारे वाइस चांसलर हैं, उनकी हदायत के तहत हम जो भी उनके इनिशिएटिव्स हैं उसके तहत हम काम करते हुए हमारे जो रीजनल ऑफिसेज़ हैं जो पूरे मुल्क में कायम हैं, 53 के करीब रीजनल ऑफिसेज़ हैं, उनके थ्रू हमने बड़ी कम्प्रिहेंसिव एडमिशन कैंपेन जो वो की। और अल्लाह का शुक्र है कि हम इस सेमेस्टर में पिछले कई सेमेस्टर से ज़्यादा हमने दाखिले किए हैं। जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं तमाम यूनिवर्सिटी से मैं समझता हूँ कि सबसे बेहतर और सबसे इफ़ेक्टिव डिजिटल प्लेटफॉर्म्स मौजूद हैं। CMS है हमारा स्टेट ऑफ द आर्ट, LMS है हमारा, ERP सिस्टम है, हम जो वर्कशॉप्स हैं, हमारे जो ट्यूटोरियल्स हैं वो ऑनलाइन हम ले सकते हैं। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की डिजिटलाइजेशन और नए मज़ामीन की शमूलियत से तालीम का मायार मज़ीद बेहतर होने की तवक्को है। कैमरामैन मोहम्मद बिलाल के साथ आतिफ परवेज, लाहौर न्यूज़।
और यहाँ पर आपको खबर दें कि आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने 5 अफसरान के तकर्रुर और तबादले कर दिए। डीपीओ लिया अली वसीम को डीपीओ डेरा गाजी खान तैनात कर दिया गया। डीपीओ डीजे खान कैप्टन रिटायर्ड तारिक वलायत एसएसपी रिसर्च सीटीडी पंजाब तैनात। एआईजी वेलफेयर सैयद अब्दुल रहमान शराजी को डीपीओ मंडी बहाउद्दीन लगा दिया गया है। डीपीओ मंडी बहाउद्दीन वसीम रियाज एआईजी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सीपीओ तैनात। एसपी इन्वेस्टिगेशन डीजे खान शमसुद्दीन को डीपीओ लिया का इजाफी चार्ज दे दिया गया है। नोटिफिकेशन भी जारी। मजीद जान लेते हैं मुदस्सिर हुसैन से। जी मुदस्सिर, इन ट्रांसफर्स बारे बताइएगा। जी बिल्कुल, पंजाब पुलिस में तबादले किए गए हैं। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने 5 अफसरान के तबादले किए हैं और नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। डीपीओ लिया अली वसीम को डीपीओ डेरा गाजी खान की सीट पर तैनात किया गया है और डीपीओ डीजी खान कैप्टन रिटायर्ड तारिक वलायत को एसएसपी रिसर्च एंड एनालिसिस सीटीडी लाहौर तैनात किया गया है। इसके अलावा एजी वेलफेयर सैयद अब्दुल रहीम शराजी को डीपीओ मंडी बहाउद्दीन तैनात किया गया है। अब्दुल रहीम शराजी की ये पंजाब में पहली डीपीओ की पोस्टिंग है और वो तकर्री के मुंजर थे, जिसके बाद उनको जो है वो अब्दुल रहीम शराजी को डीपीओ मंडी बहाउद्दीन की अहम सीट पर तैनात किया गया है। डीपीओ मंडी बहाउद्दीन वसीम रियाज को एआईजी इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी सीपीओ ऑफिस जो है वो तैनात कर दिया गया है। इसके अलावा एसपी इन्वेस्टिगेशन डीजी का शमसुद्दीन को डीपीओ लिया का इजाफी चार्ज जो है वो दे दिया गया है। डीपीओ लिया किसी अफसर को तैनात नहीं किया गया। वहाँ पर जो एसपी इन्वेस्टिगेशन डीजी खान थे वहाँ उनको जो है वो शमसुद्दीन को डीपीओ लिया का इजाफी चार्ज दिया गया है। इसके अलावा ज़राए के मुताबिक आइंदा चंद रोज तक मज़ीद अफसरान के तबादले भी मुतवक्किल हैं, जिसमें डीपीओ चकवाल, डीपीओ हफ्जाबाद शामिल है और डीपीओ लिया में भी नए अफसर की जो है वो तैनाती की जाएगी। इस हवाले से चंद रोज तक जो है वो अफसरान को नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। जी ठीक है मुदस्सिर, बहुत शुक्रिया आपका।